डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको अबोलिशन ऑफ स्लेवरी करा था एंड स्लेवरी ट्रेड इट वाज बिगिन इन 17th century and it was held between Africa, America and Europe. So slavery trade was ended in 1848. Revolutionary government Maximilian Robespierre's government abolished the slavery trade, but Napoleon reintroduced after 10 years and finally in 1848 it was abolished. Now our topic is the revolution and everyday life. The revolution and everyday life. Can politics change the clothes we wear, the language we speak, the books we read? In the years after 1789, France saw many changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it themselves to translate the ideals of liberty and justice in everyday practice. And one of the important law that was introduced after the storming of Bastille का विनाश करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून था, that was the abolition of censorship. सेंसरशिप जो थे उसको खत्म कर दिया गया. In the old regime means before 1789, the France of 1789 before 1789. So in the old regime, all written materials and cultural activities, books, magazines, newspapers, plays, all were published and performed after they had been approved by the censors of the king. All written material and cultural activities, books, magazines, newspapers, plays, all were published and performed after they had been approved by the censors of the king. But now the Declaration of Rights of Man and Citizen in 1791, the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaimed the freedom of speech and expression as natural right. And freedom of press also meant that opposite views of the events could also be published. So now the books, magazines, newspapers, printed pictures all flooded in the towns of France, in all the cities of France, and then they traveled in the countryside also. And they described all the events and changes that were taking place in the French society. So the plays, songs and festive processions, they attracted the large number of people. Plays, songs and festive processions attracted the large number of people because it was the only way to convince people about the ideas of philosophers, because at that time most of the people could not read or write. उस समय अधिकतर लोग जो थे पढ़ लिख नहीं सकते थे. So it was the only way to convince the people, and so plays, songs and festive processions, they attracted a large number of people. So the one of the most important law that it came into effect after storming the Bastille in 1789 was the abolition of censorship. Then rise of Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte का उदय. In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself as the Emperor of France. वो फ्रांस का मैंने आपको बताया था कि जो इसमें 1789 में इसको बेस्टिल को उड़ाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया था वो था जो प्रतिबंध था, सेंसरशिप थी, उसको हटा दिया गया. रिटर्न मटेरियल्स पे और उस पर जो भी प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया था, क्योंकि 1791 का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था उसमें व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई,
इसलिए फ्रांस के सभी शहरों में जो बुक्स, मैगजीन्स और इनकी एक तरह से बाढ़ सी आ गई। फिर ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गए और इसमें इन सब में बुक्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह में वो फ्रांस के अंदर जो भी घटनाएं हो रही थी, जो परिवर्तन हो रहे थे, उन सब के बारे में लिखा होता था। क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उस समय जो प्लेस थे या आपके ये सॉन्ग्स थे, फेस्टिव प्रोसेसन थे, इन्होंने बड़ी मात्रा में जो था लोगों को आकर्षित किया। उसके बाद नेपोलियन का उदय होता है। 1804 में नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस एंड आफ्टर बिकमिंग द एम्परर he set out to conquer the neighboring countries, dispossessing dynasties, creating new states and placing the members of his family and placing there the members of his family. 1804 में फ्रांस का एम्परर बनने के बाद नेपोलियन जो था उसने पड़ोसी देशों को जीतना शुरू कर दिया। उसने वहां पे जो राजवंश थे उनको नष्ट कर दिया, अपने उसमें मिला लिया और वहां पे उसने अपने सदस्यों को नियुक्त कर दिया। नेपोलियन इज ऑल्सो कॉल्ड ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन को यूरोप का आधुनिकीकर्ता भी समझा जाता है। नेपोलियन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। व्हाई? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज। He introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weight and measures provided by the decimal system. He introduced many laws such as protection of private property. Then he introduced a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. So Napoleon introduced these laws. Initially he was thought to be a liberator. शुरू में उसको एक लिबरेटर, एक मुक्तिदाता के रूप में समझा जाता था। That would bring freedom for all the people, जो सभी लोगों को आजाद कराएगा। But soon his armies came to be viewed as an invading force everywhere. And finally he was defeated in Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the ideas of liberty and modern laws to the rest of the Europe had an impact on the people long after he had gone. So नेपोलियन जो था 1804 में फ्रांस का एम्परर बना। उसके बाद उसने पड़ोसी देशों को विजयी करना शुरू कर दिया। उसने वहां के राजवंशों को नष्ट कर दिया और इस तरह से वहां पे अपना स्टेट बना के वहां पे अपने जो फैमिली के मेंबर्स थे उसको अपॉइंट कर दिया। उसको एक मॉडर्नाइजर के रूप में भी समझा जाता है। बिकॉज इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की सुरक्षा, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली शुरू में ही वॉज थॉट टू बी ए लिबरेटर। उसको एक मुक्तिदाता के रूप में समझा जाता था कि वो सभी लोगों को मुक्ति दिलाएगा, आजादी दिलाएगा। बट सून हिज फोर्सेस केम टू बी नोन एज इन्वेडिंग फोर्स एवरीवेयर। जल्दी ही उसकी सेना जो थी वो आक्रमणकारी सेना के रूप में समझी जाने लगी। एंड फाइनली ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 और अंत में वो 1850 के अंदर वाटरलू में हार गया। बट मैनी ऑफ हिज मेजर, जो उसने बहुत से तरीके अपनाए, जो उसके मॉडर्न लॉज थे, आधुनिक कानून थे जो उसने इंट्रोड्यूस किए थे, उनका बाकी के यूरोप पे भी लोगों पर काफी लंबे समय तक प्रभाव रहा। मतलब नेपोलियन जा चुका था, उसके बाद भी उसके जो लॉज थे, उसने जो इंट्रोड्यूस किए थे, उनका लोगों पर काफी लंबे समय तक विश्वास रहा। सो द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या थे? लिबर्टी, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट्स। एंड दीज आइडियाज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये जो आइडियाज थे लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के, ये फ्रांस से दूसरे जो यूरोप के दूसरे भागों में भी फैले और वेयर द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबोलिश्ड, सामंती प्रथा को नष्ट कर दिया गया।
जो colonized people थे, colonized people revoked the idea of freedom from the bondage into their movements to create a swan state. जो colonized औपनिवेशिक लोग थे उन्होंने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरणा ली कि आजादी प्राप्त करके एक वो स्वर्ण स्टेट बनाए. टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन राय were the two examples who got inspiration from the French Revolution. टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरणा ली. वहां पे जो आइडियाज थे लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स है उनसे प्रेरणा ली. तो इस तरह से ये आपका लेसन आज यहाँ पे खत्म होता है. इसमें कुछ सिंबल्स थे जो आपने नहीं किए हैं और जो सोर्सेज होते हैं वो आपको पढ़नी है. यू हैव टू राइट ऑल द सोर्सेज. सिंबल्स थे पेज नंबर 12 एंड 13 पे. ये था द ब्रोकन चेन. ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन किस चीज का प्रतीक है? द एक्शन ऑफ बिकमिंग फ्री, आजाद होने का प्रतीक है. A broken chain stands for the act of becoming free. Bundle of roads. Bundle of roads. Bundle of roads मतलब you can break one road, but you cannot break the bundle. एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हो, इकट्ठे जो होता है उसको, जो गट्ठा होता है आप उसको नहीं तोड़ सकते. So the strength lies in the unity. फिर next है the eye within the triangle radiating light. So all seeing eyes, they stands for knowledge. All seeing eyes, they stand for the knowledge. Sceptre, symbol of royal power. Then the snake biting its tail. Snake biting its tail to form a ring. Snake biting its tail to form a ring. एक उसे एक ring बन जाती है because the ring has neither beginning nor end. So it stands for the eternity. It is the symbol of eternity. Phrygian cat worn by a slave after he become free. फिजियन कैप, एक रेड कैप जो कि स्लेव जो थे आजाद होने के बाद पहनते थे. फिर है ब्लू व्हाइट रेड. ब्लू व्हाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. ब्लू व्हाइट रेड दे आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. फिर है विंग वुमेन, सिंबल ऑफ पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ. विंग वुमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ. एंड द लॉ टैबलेट्स, द लॉ इज सेम फॉर ऑल. सो ये लेसन आपका खत्म होता है. कल से क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस चैप्टर के बाद हम जो है सभी जो अब तक मैंने लेसन कराया उनका रिवीजन भी होगा, आपके टेस्ट लूंगी. तो कल से क्वेश्चन आंसर भेजूंगी और ये आपको लेसन जो है अच्छी तरह से पढ़ना है. सारी वीडियोस भी देखनी है और उसके बाद पढ़ना भी है और सारे सोर्सेज आपको पढ़ने हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.